एनईएफ ने बिहार में शिक्षा के नए क्षितिज पर कदम रखा। राष्ट्रीय शिक्षा मंच, एनईएफ बिहार चैप्टर और लेट्स इंस्पायर बिहार ने कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गार्गी पाठशाला नामक एक समुदाय उन्मुख शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। पाठशाला में विशेष रूप से महिलाओं और वंचित बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और जीवन कौशल आधारित कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। ये पहल बिहार के आईजी विकास वैभव से प्रेरित है, जिन्होंने कहा, गार्गी पाठशाला सशक्तिकरण का प्रतीक होगी। सम्मेलन में एनईएफ बिहार राज्य समन्वयक और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण, ग्रामीण शहरी छात्र विकास और सहभागी शिक्षा मॉडल जैसी कई भविष्य की परियोजनाओं के बारे में बात की। एनईएफ का मुख्य संदेश, आइए बिहार को प्रेरित करें। राम को गौरवान्वित करने के लिए आए और आज बंगाल की धरती पर कोलकाता प्रेस क्लब में शिक्षा के स्रोत को जनमानस तक, साधारण मानस तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के साथ बिहार की धरती, बिहार के लाल, बिहार के आईपीएस, बेगूसराय के सुपुत्र आईजी आईपीएस श्री विकास वैभव सर के माध्यम से जो बिहार सरकार में हैं, सेवारत हैं, लेकिन आज वो पूरे भारत वर्ष में उनका कार्य सुरक्षा के रिगार्डिंग पुलिस सेवा में है, लेकिन आज वो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत के हर राज्यों में उनकी पहल है गार्गी पाठशाला को ओपन कराना और उसको वंचितों को, साधारण जनमानस के बच्चों को, ताकि आज शिक्षा को लेकर सभी लोग अवेयर हैं, लेकिन एक बड़ी कमाई अपने बच्चों पे खर्च करने के बाद भी उनके बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा के नाम पे ठगे जाते हैं। वैसे में एक कुशल प्रशासक आईजी श्री विकास वैभव सर जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में आज कलकत्ता में भी गार्गी पाठशाला का शुभारंभ हुआ है और इसमें टेक्निकल शिक्षा भी दिया जाएगा, कंप्यूटर रिगार्डिंग शिक्षा भी दिया जाएगा और ऐसी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होगी। কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও কিন্তু এআই ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ হিউম্যান মাইন্ড, আর হিউম্যান মাইন্ড শুড বি অলওয়েজ ইভলভিং। তো উই শুডন্ট বি চ্যালেঞ্জড অর উই শুডন্ট ফেস এনি চ্যালেঞ্জ ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিকজ we have created that and we should have full control over that, and that is the challenge that we should have the control over। যেরকম কম্পিউটার্স এসেছিল তখন বলেছিল সবার চাকরি চলে যাবে, অনেক এরকমই এআই হওয়ার পরেও আমাদের কিন্তু চাকরিটা চ্যালেঞ্জে নয়। ইফ উই আর আপগ্রেডিং আওয়ারসেলফ, আমরা যদি নিজের ব্রেনের সফটওয়্যারটাকে আপডেট রাখি তাহলে কোনোটাই কিন্তু চ্যালেঞ্জ নয়, বিকজ হিউম্যান মাইন্ড ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ গড। সো এটা কিন্তু কোনোটাই চ্যালেঞ্জ নয় আমাদের জন্য। নিশ্চয়ই একদম উন্নত মানের শিক্ষা, যেরকম সূর্যের আলো, হাওয়া, জল আমরা আটকাতে পারি, সেরকমই শিক্ষাকে আমরা যেন আটকাতে, বাউন্ডারিজের মধ্যে আটকাতে না পারি। আমরা শিক্ষাকে এমন করে দেব, কে জানে কালকে কোথার থেকে আমাদের একজন আব্দুল কালাম তৈরি হবে, কোথার থেকে আমাদের বিবেকানন্দ তৈরি হবে, কোথার থেকে আমাদের কে কিভাবে তৈরি হবে আমরা জানি না। তাই আমাদের শিক্ষকদের তরফ থেকে আমি এটা জানাতে চাই যে আমরা শিক্ষাটাকে প্রত্যেকটা একদম ইন্টেরিয়ারের স্কুলসগুলোর মধ্যেও নিয়ে যেতে চাই। আর আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো একদম টপ মোস্ট স্কুলসগুলোর সাথে, একদম ইন্টেরিয়ার মোস্ট স্কুলের ছাত্রদের সাথে আমরা কম্পিটিশান করব। আর আমরা কিন্তু এটা একদম নিশ্চিত যে আমাদের বাচ্চারাও কিন্তু পারবে, কারণ টাকা পয়সা দিয়ে কিন্তু শিক্ষাকে কেনা যায় না। আমাদের গার্গী পাঠশালার যে এই উদ্যোগটা আছে, এই উদ্যোগে আমরা ফ্রি এডুকেশন ফর ওমেন, ফ্রি এডুকেশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেন এই উদ্যোগটা নিয়েছি। আর আমরা এনটেট যেটা আছে, ন্যাশনাল টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট, যে আমাদের প্রজেক্টগুলো আছে সেই পুরো প্রজেক্ট আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে, সবটাই পুরো ভারতবর্ষ জুড়েই হচ্ছে। আজকে থেকে চালু হলো কি এটা বলতে পারো? সেটা নিয়ে শিক্ষার ছাদ আমাদের, আমি যে দিক দিয়ে তাকাই, আমি যেখান থেকে দেখি সেখান থেকে আমি পজিটিভ দেখতে পাই, চারিদিকে পজিটিভ দেখতে পাই।
আর এইটাই আমাদের মেসেজ যে সবাই যাতে পজিটিভটা দেখে। একটা বছর আমরা সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে এই ছাদ ভাঙছিল কি উঠছিল এগুলো নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করার কোনো বিষয় নেই। কারণ দায়িত্বটা তো আমাদের উপরে, কোনো একটা পার্টিকুলার মানুষের উপরে দায়িত্ব দিয়ে আমরা চুপচাপ বসে আছি বা কেন? পুরো দায়িত্বটা সমস্ত প্রি প্রাইমারি টিচার, প্রাইমারি টিচার, সেকেন্ডারি টিচার, মিডল স্কুল টিচার সবার ওপরে দায়িত্ব ছিল। কোনো একটা মানুষকে দায়িত্ব মানে দায়ভার দিয়ে তাকে নিয়ে ক্রিটিসিজম করে সময় নষ্ট করার মতন মেন্টালিটি আমি দেখতে পাই না। আমি যেখান থেকে দেখছি পশ্চিমবঙ্গকে, ইভেন আমার দেশকে আর বৃহৎ আকারে আমার বিশ্বকে আমি একটা খুব পজিটিভ সাইন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমি বলবো আপনারা সবাই আমার দিক দিয়ে চিন্তা করুন, দেখবেন পুরোটা কিন্তু সুন্দর মনে হবে। बेगूसराय बिहार में डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का मैं जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। और बेगूसराय जो है मान लीजिए अलग भौगोलिक स्थिति है वहाँ। औद्योगिकरण तो अच्छा है, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार की तरह और गौरगी जो हमारा संस्था है, इसके माध्यम से जो वंचित हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, और वो भी आज का जो है टेक्निकल एजुकेशन जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे को, महिलाओं को शिक्षित कर सकते हैं, उस पर मेरा मोटो है कि महिलाओं को खास करके कैसे सक्षम बनाया जाए। खासकर तकनीकी शिक्षा जो होता है कंप्यूटर से, उन पे हम लोग का फोकस रहेगा। और जो बच्चे हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जिनका बच्चे के पास जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन रियल एजुकेशन हो चाहिए, जो उसका मानसिक शारीरिक ग्रोथ होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, उसका नैतिक मूल्य, राष्ट्र से जोड़ना, अपने मिट्टी से कैसे कनेक्ट रहेगा, अपनी संस्कृति क्या है और भारत का लक्ष्य क्या है, इस पे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग इंस्पायर हैं, खासकर लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रणेता IAS जी विकास वैभव साहब से। उनके नेतृत्व में पूरे बिहार सहित पूरे भारत से लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये संस्था चल रहा है। लेकिन उसमें मुझे छोटी सी एक इकाई बेगूसराय मिला है, मैं पहले उसको मजबूत करूंगा, क्योंकि एक जगह अगर मजबूत होता है, एक घर मजबूत होता है, तो उसके माध्यम से एक देश, एक राज्य मजबूत होता है। तो मेरा ये मोटो है कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसे ढंग से निभाना चाहिए। और उसमें नाम रखा है उनके, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आज जो एजुकेशन नेशनल फॉर्म आज जो बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और खास के ये जो कोलैबोरेट लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ है, और इसके साथ में गैरी पाठशाला आज ये बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन पर काम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे गरीब हैं, है ना, उस बच्चे के लिए। और लेट्स इंस्पायर बिहार जो हमारे IPS विकास भैवे सर हैं, जो इंस्पायर बिहार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने पूरे स्टेट में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है लेट्स इंस्पायर बिहार। और जो मैम अभी इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गीतांजलि मैम का, जिन्होंने कोलैबोरेट किया नेशनल एजुकेशन फॉर्म के साथ।